স্বাস্থ্যই সম্পদ, মানুষ স্বাস্থ্যের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করতে কেউ চায় না। তো এই যে ভয়টা, এই ভয়টা কিন্তু কন্টিনিউ কাজ করে। অনেক ভালো ভালো অনেক ডাক্তারবাবুরা আছেন, তারাও চেষ্টা করেন এটা করার জন্য। যেরকম আজকে আমার ডাক্তারবাবুকে পেয়েছেন, উনিও খুব খুশি হবেন এটা যে এখানকার মানুষ আর কি সেটা জানতে পারবেন ভেবে উনি সেই জন্য এসছেন এখানে, যাতে আপনারা সঠিক জিনিস জানতে পারেন, আপনি আপনার পাঁচজনকে জানাতে পারেন। তো ঠিক এই রকম যে সঠিক ওষুধের প্রাইসটা কি, এটা কি করে শুরু হলো 2012 সালে। 2012 সাল থেকে আজকে 13 বছর হয়ে গেল এটার কন্টিনিউ প্রচার চলছে, যে ওষুধ আপনি বেশি দামে কিনছেন, ওষুধের দাম এত নয়। এটা শুধুমাত্র আমরা জেনো হেলথ 2017 থেকে শুরু করেছি, শুধু আমরা নয়, সরকারও শুরু করেছিল যে মানুষকে বোঝাতে, মানে ডাক্তারবাবুরাও চেষ্টা করেছেন মানুষকে বোঝাতে, কিন্তু মানুষ সচেতন হচ্ছে না। তো ঠিক সেরকমই আপনার ওষুধের কিন্তু আপনি দ্বিগুণ দাম দিচ্ছেন। ঠিক সেরকমই আমি আপনাকে বললাম শুরুতেই একটা জিনিস, এই 2017 থেকে 800 কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত জেনো হেলথ মানুষকে এই সচেতনতা দিয়েছে এবং তাদের সাশ্রয় করিয়েছে। তাদের টাকা, পকেটের টাকা, আপনারই রোজগারের টাকা। বিন্দুতে বিন্দুতে কিন্তু সিন্ধু হয়। ছোটবেলায় আমাকেও একটা ভাঁড় কিনে দেওয়া হয়েছিল, আমি 1 টাকা 2 টাকা করে ওখানে ফেলতাম, বাট একটা সময় 3 মাস পর যখন দেখতাম অনেকগুলো টাকা হতো, বুঝতেই পারিনি কখন এত টাকা জমে গেছে। সেরকম আপনি প্রতি মাসে আপনার পরিশ্রমের টাকা আপনি অন্য কাজে লাগাতে পারবেন, কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না, বিকজ আপনি জানেন না, আপনাকে জানানো হয়নি। তো এই পার্টটা আমরা একটা দেখে নেব ডাক্তারবাবুকে ডাকার আগে, যে এই ফার্মা কোম্পানিগুলো কিভাবে কাজ করে, অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে। সিনের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারার, সেখান থেকে একটা জায়গায় গেল সিএনএফএ, দেন ডিস্ট্রিবিউটার, বড় একটা ডিস্ট্রিবিউটার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যায়, দেন কিছু কিছু দেখবেন হোলসেলার আছে, সেখানে এলো ওই ওষুধটা, দেন ওখান থেকে এলো রিটেলার, যেখান থেকে আপনি কিনছেন, দেন কাস্টমার। এরপরে কি হয়, মার্কেটিং শুরু হয়ে যায়। এতগুলো মাধ্যম পেরিয়ে পেরিয়ে আপনি যাচ্ছেন বাজারে। যখন আপনি যান দেখবেন আলুর দাম জিজ্ঞেস করলে আপনাকে আপনি বলেন 2 টাকা কম হবে, বাট কখনো একবার আপনি বলুন তো, কখনো এটা আপনি ওষুধের দোকানে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে পেরেছেন? কেউ পারি না, কেউ আমরা 2 টাকা কম নিতে বলতে পারি না, বিকজ আমি জানি না সঠিক দামটা কি। আপনি তো জানেন না, তাহলে আপনি বলবেন কি করে যে ভাই দাম কম নাও তুমি। তো ঠিক সেরকম হাউস ইন ওয়ার্কস আমরা কি করি, আমরা এতগুলো মাধ্যমকে রাখি না, ডিরেক্টলি জিরো ম্যানুফ্যাকচার টু কাস্টমার কনজিউমারকে দিতে পারি, যে আমরা চাই আপনি সঠিক মূল্যে ওষুধটা পান। তো এই যে নো মার্কেটিং, যে সঠিক দামে আপনি আমাকে দিতে পারবো ওষুধটা, এটা হচ্ছে যেন এখন অব্দি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। তো আমরা ছোট্ট একটা জিনিস তো দেখবো যে আমরা এই 2012 সাল থেকে, যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম, ডক্টর সমিত শর্মা প্রথম রাজস্থানে শুরু করেছিলেন। ডক্টর সমিত শর্মা প্রথম রাজস্থানে এটা শুরু করেছিলেন। আজকে 13 বছর পরও আমরা জানি না। এই ভিডিওটা দেখলে আপনার কাছে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এই ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে কি চলছে, আপনি বুঝতে পারবেন। 10 টাকার মেডিসিন আপনি কিনছেন 300 টাকা দিয়ে। এই ভিডিওটাতে আপনি দেখতে পাবেন, খুব পপুলার একটা শো ছিল 2012-তে, সত্যমেব জয়তে, আমির খানের একটা এপিসোড ছিল, যেখানে ডক্টর সমিত শর্মা এটা খুব ক্লিয়ারলি একটা মেসেজ আমাদের সোসাইটির জন্য দিয়ে গেছেন। একটু দেখে নিই আমরা। बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। हमारी टीम की एक सदस्य ने आमतौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया। फिर उन्होंने ये दवाइयाँ बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी। कितना? 2151। और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन की दुकान से भी ली। कितना हुआ इसका? 354। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। राजस्थान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत की चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर समित शर्मा ने। समित, मुझे बताइए कि ये कैसा मुमकिन है कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी वो वही दवाइयाँ उन्होंने 2000 कीमत में उनको मिली एक दुकान में, और जो जेनेरिक मेडिसिन है उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली, 300 में मिली। ये कैसे मुमकिन है? ठीक इसी समय प्रति क्षण प्रति पल एक ट्रेजेडी हमारे चारों ओर घट रही है।
अर्थक्वेक की या फिर सुनामी की बात करें, उसमें जितने लोगों की जानें एक दिन में जाती है, उससे ज्यादा जानें प्रतिदिन इस ट्रेजेडी के वजह से जाती है। जी, क्या ट्रेजेडी है? ट्रेजेडी ये है साहब कि जो दवाइयाँ की जो वास्तविक कीमत है वो तो बहुत ही कम है, पर जो दवाइयाँ हम जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कई बार तो 50 गुना से भी ज्यादा दामों पे हम उसको खरीदते हैं। जैसे हम भारत में अगर देखें कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते, तो क्या वो दवा को खरीद सकते हैं? बहुत सारे लोगों को इस वजह से दवाई नहीं मिलती। Yes, WHO कहता है कि स्वतंत्रता के 65 वर्ष पश्चात आज भी 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लैक्स रेगुलर एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। जो मेन दवाई है, जो आवश्यक दवाइयां हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती रकम की वजह से। रकम की वजह से। मुझे बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन जो हम कहते हैं, अभी अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। तो ये जेनेरिक नाम, जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जो इसके अंदर जो दवा है, उसका नाम है, केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम है। अब जैसे और उदाहरण अगर सरल करके बताएं इसको, तो जैसे ये लड़की दुबली पतली से नजर आती है, तो मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं इसको ये कहूँ 1 गिलास दूध सुबह 1 गिलास शाम को पिया करें। पर चिकित्सा के व्यवसाय में दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस का दूध लेके आइए, हम कहते हैं कि वो रामू की भैंस का दूध लेके आए। यही ब्रांडिंग है। ये जब उसकी दुकान पे जाती है, वो कहता है 500 रुपए लीटर है, लेना है कि नहीं लेना? तो जो 30 रुपए की चीज है वो 500 रुपए में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी 117 रुपए में मिलेगी। और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की मिलती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। और दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी की 100% समान, क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है। उसका मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, रिटेल मार्जिन, जो उसकी मार्जिन जो हैं, जो हमारे ज्यादा, तो सब मिलाकर उतने की पड़ती है। तो कैंसर के मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसमें एक ही दवा जो ब्लड कैंसर के काम में आती है, बाजार में 1.25 लाख रुपए का एक पैकेट मिलता है। 1.25 लाख? 1.25 लाख का एक पैकेट 1 महीने चलता है। और जेनेरिक में वही दवा जेनेरिक में अलग अलग कंपनी जो बनाती है, एक 10,200 में बेचती है, एक 8,800 में बेचती है और एक 6,500 में बेचती है। मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पब्लिक को, आवाम को ये दवाएं पहुंचा रहे हैं आप? जी इस वक्त, जी क्या बात है। मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जेनेरिक नाम क्यों नहीं लिखते? क्यों लिखते हैं वो ब्रांड? जाने नहीं देंगे बात में। नहीं सब जाने देंगे। जब एक नया मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है, तो उसके पास जो कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेल्स बढ़ाने का उनका काम होता है, मार्केटिंग सेल्स रिलेटेड होता है। फिर वो कहते हैं साहब अब हमारी जो दवा है ये भी लिखना, ये बहुत बेहतर दवा है, इससे मरीज ठीक होगा। और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से 5, 10 गुना, 20 गुना तक बढ़ा देता है। ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास जब हम टेंडर करते हैं तो बहुत सारी कंपनी वाले आते हैं, जो भारत की जो सबसे बेहतर कंपनियां, जिसके भी नाम रेप्यूटेड कंपनियां जिनके नाम आप ले सकते हैं, वो सभी हमें वो उसको जो 70 रुपए की है उसको 2 रुपए में, 5 रुपए में दे रही है, 30 रुपए की दवा 2 रुपए में दे रही है। इतना ज्यादा फर्क। तो कंपनी तो दे सकती है और देना चाहती है और हमें देती भी इतनी कम दाम में, हमें देंगे ना, ये संभव तो। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि भारत से हम लगभग 45,000 करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाइयां प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात करते हैं। आप भेजते हैं दुनिया भर में जेनेरिक, ये जो सस्ती दवाएं हैं आप विश्व भर में बेचते हैं और हमारे लोगों को नहीं। हमारे देश में महंगी है, हमारे देश में महंगी। अगर ऐसा है तो हमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं, हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। आपने जब ये शुरू किया तो आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में? देखिए जो प्रयास हम कर रहे हैं ये बेसिकली धारा के विपरीत रहने का एक प्रयास है जी। काफी थ्रेट्स भी हैं, क्योंकि इसमें माफियाज भी हैं, ड्रग माफियाज जो ऑपरेट करते हैं। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम 100 साल से भी पुरानी शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, पर हमने हमेशा डॉक्टर्स को दोषी नहीं माना जी। सारे डॉक्टर्स बुरे नहीं हैं जी। 50-60% तो जनरली वो चाहेंगे कि गरीबों को कम कीमत पे दवा मिल जाए, वो चाहेंगे। और आज भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर से सैंपल्स ला करके अपने जेब से पैसे निकाल के मरीज का इलाज कराते हैं। ऐसे डॉक्टर्स आज भी हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था छोटा, इंसिडेंटली हमको इस समय छुट्टी मनाने के लिए बाहर गए। जब हम लौट के आए 10-12 दिन बाद, तो वो
लक्ष्मी के साथ उसका छोटा जो बेटा था राजू, वो भी उसके साथ आता था जब, तो मेरे बच्चों के साथ खेलता था, मेरे बेटे के साथ खेलता था। तो वो लक्ष्मी अकेली ही रही, राजू नहीं आया। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बात बताई कि साहब को उसको आप कहे थे उल्टी दस्त हो गया था। उल्टी दस्त की बीमारी के लिए जब दवा लेने गई तो केमिस्ट ने उसको कहा कि इसके तो 400 रुपये लगेंगे। उसने कहा मैंने खूब मांगा, मेरे पास 400 रुपये मुझे नहीं थे और मेरा बच्चा रात को ही उसको दस्त आते रहे, खत्म हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो दवा लिखी थी कि वास्तव कीमत 1.5-2 रुपये ही है, तो वो बच्चे की जान बच सकती थी। 65 वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्त से मर जाए तो मैं नहीं समझता इससे शर्मनाक बात कोई हम लोग के लिए हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसे आसानी से बदला जा सकता है। हमें सबको एक समन्वय से संगठित प्रयास करने की जरूरत है। तो कुछ भी नहीं है, कोई नई फैक्ट्री खोली नहीं, कोई नई दवा नहीं बनानी, ये सब जो गलत चल रहा है इसको रोकना ही तो है। तो दोस्तों, डॉक्टर समीर की बातों से हमें ये पता चला है তো दवाइयों का जो এই ভিডিওটা আমি যতবার দেখি বা ততবারই খুব দুঃখ লাগে যে এরকম এরকম একজন ডাক্তারবাবুকে আমরা আজকে পেয়েছি, আজকে ডক্টর সামন্তকে আমরা পেয়েছি। ইনিও ঠিক সেরকমভাবেই চাইছেন যে মানুষের কাছে এই সঠিক মেসেজটা যাক